I once again me Sheikh Sami, the tutor at Gaussian Institute of Education, Batakuntral, carrying your subject-wise topics on the subject of geography that includes our second topic today, that's major industries and iron and steel industry as an industrial system. First topic is yours, major industries, and second one is iron and steel industry as an industrial system. So let us begin. What are major industries? What are major? These are actually those industries. These are actually those industries that have contributed a lot. Towards the global economy. So, what are major industries? These are the industries having contributed much more towards global economy. Major industries are those industries that have contributed much more towards global economy, and it has revolutionized the global economy community in terms of their economic affairs, or we can say in terms of their economic behavior. These are the major industries. It generally includes the iron and steel industry, first one, and second is textile industry. First one is iron and steel industry, second one is textile industry, and third one is information technology. Both iron and steel industry as well as textile industry, these are the two older industries. Two older industries. These are the two farm industries or older industries that have revolutionized the human civilization from their beginning. And second one is the information technology. It is the industry that generally comes in the category, namely emerging industries. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री जो है ये आ जाती है इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में. इन इमर्जिंग इंडस्ट्रीज को हम कभी कभार क्या बोलते हैं, कभी कभार हम इनको बोलते हैं सनराइज इंडस्ट्रीज भी. सनराइज इंडस्ट्री क्यों? क्योंकि इनका आइडिया, क्योंकि इनका थॉट, क्योंकि इनका जो बिजनेस का बिहेवियर होता है, बिजनेस के जो अफेयर्स होते हैं वो अभी क्या डेवलपिंग स्टेज में ही होते हैं. तभी हम इसको बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये वो वाली इंडस्ट्री है जो पड़ती है अभी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में, या हम कहेंगे सनराइज इंडस्ट्री में भी. और ये जो आयरन और स्टील वाली इंडस्ट्री और टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्री जो है ये पड़ती है किन में? ओल्ड इंडस्ट्रीज में. सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्स, इट इज एन इमर्जिंग industry. Information technology is an emerging industry, while in iron and steel industry and textile industry, these are the two industries that are older industries. Now, those countries in which iron and steel is mostly found, it includes the countries like China. It is one of the leading producers of iron and steel in the world. Second one is America. Second one is Japan. Then it comes America. Fourth one, India. These are the countries that have generally contributed a lot more towards the iron and steel production. It involves the country China, Japan, America, India, Russia, also Germany. Now, but the country India has now left far behind the Japan, and it has now come on the second stage. इंडिया ने अब जापान को पीछे छोड़ दिया. अब इंडिया जो है ये दूसरे नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन. इन टर्म्स ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, इंडिया कम्स ऑन द सेकंड पोजीशन. These were the countries that have contributed lot towards the production of iron and steel industry. ये वाली कंट्रीज हैं वो जिन्होंने सबसे ज्यादा, या जो इस वक्त वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आयरन और स्टील प्रोड्यूस करते हैं. इसके बाद रह गई ये जो टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्री है, इसमें भी इंडिया ने अच्छी डेवलपमेंट की है, अच्छी डेवलपमेंट दिखाई, अच्छी तरक्की दिखाई. इसका मतलब इंडिया भी एक ताइवान है, नॉर्थ कोरिया है,
खाली नॉर्थ कोरिया ही नहीं, जापान है इसमें। ये वो कंट्रीज है जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन में लीड करते हैं वर्ल्ड में। इससे पहले कौन था? इंडिया, जापान, अमेरिका, चाइना, जर्मनी, इवन टर्की भी। आयरन और स्टील प्रोडक्शन में टर्की का भी कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है, और वो वर्ल्ड में इस वक्त 8वें नंबर पे बढ़ता है टर्की। और टर्की के बाद आता है यूक्रेन। सो सबसे पहला लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री जो आयरन और स्टील में है वो सबसे पहले जापान, उसके बाद है अब इंडिया, उसके बाद है जापान, उसके बाद आता है अमेरिका, फिर आता है जर्मनी, और जर्मनी के साथ आता है फिर रशिया, रशिया के बाद आता है ऐसे ही यूक्रेन और तुर्की वगैरह। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज लीड करते हैं? इसमें इंडिया, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, जापान। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो अभी अभी ग्रो ही कर रही है, अभी डेवलपिंग स्टेजेस में ही है, ये एक इमर्जिंग इंडस्ट्री बनती है। हमारी इन इमर्जिंग इंडस्ट्री को कभी कभार नाम देते हैं सनराइज इंडस्ट्री। इसमें खाली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं आती है, बल्कि इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में, लेट मी शॉर्टन द वर्ड, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज को मैं लिखूंगा EI से ओब्लिक करके, इनको हम याद रखते हैं ऐसे ही, सनराइज इंडस्ट्रीज इनको हम कहते हैं। इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है? एक तो आती है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। खाली IT ही नहीं पढ़ती, इसमें पढ़ती है हमारी एजुकेशन। आगे मैं बोलूंगा कि एजुकेशन कैसे कैसे हमारी इंडस्ट्री साबित होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन में बताया है कि इंडस्ट्री असल में वो वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन गुड्स की होती है। खाली इतना ही नहीं, बल्कि उसमें मिनरल्स की भी एक्सट्रैक्शन होती है। खाली इतना ही नहीं, बल्कि वहां पर क्या मिलता है? वहां पर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज मिलता है, किसी को हक मिलता है, किसी को राइट मिलता है कि कुछ करने का अपने। तो इमर्जिंग इंडस्ट्री में और स्टैंडर्ड इंडस्ट्री में IT, एजुकेशन, इवन नॉलेज, ये सारे के सारे आते हैं किसमें? ये सारे के सारे आ जाते हैं सनराइज इंडस्ट्रीज में या इमर्जिंग इंडस्ट्री में। अब मैं पहले जा रहा हूं, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का, जैसे कि मोबाइल फोन्स का हम इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हम करते हैं, ताकि इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हम अपने लिए कोई इंफॉर्मेशन स्टोर कर सके, या कोई डाटा मैनिपुलेट करे, या कोई किसी डाटा को दोबारा से वापस लाए। मिसाल के तौर पर दिस टाइम आई एम गिविंग यू अ लेक्चर ऑन दिस वेरी सब्जेक्ट। दिस टाइम आई एम गिविंग द लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर टू यू, in which I am taking the help of this electronic phone. By this electronic phone, your knowledge now has become what? It has become an emerging industry. अगर ये अभी थोड़ी सी डेवलपमेंट में है, एजुकेशन भी आती है इसमें। हाँ, जो मैंने अभी बोला, एजुकेशन भी आती है इसमें, या हेल्थ भी आता है इसमें। हेल्थ को हम कैसे ट्रीट करेंगे, ये बात समझने के लायक है कि हेल्थ को हम कैसे ट्रीट करेंगे एज एन इमर्जिंग इंडस्ट्री और सनराइज इंडस्ट्री। कैसे हम ट्रीट करें हेल्थ को? कभी कभार क्या होता है कि मान लो कोई पेशेंट हमारे यहाँ है और हमने इसकी कंसल्टेंसी लेनी है कहाँ पर? अमेरिका के डॉक्टर के पास, UK के डॉक्टर के पास, रशिया के डॉक्टर के पास। तो हम क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को हम ऑन करते हैं, उसमें हम पेशेंट को उसको दिखाते हैं कि भाई इसकी कंडीशन कैसी है, ये क्या है, चले फिरेगा, इसकी हालत कंडीशन कैसी है, ये क्या सर्वाइव करेगा, इसके एलिमेंट्स क्या है, इसकी बीमारी की वजह क्या है। तो हम सारा का सारा पूछ सकते हैं ऑनलाइन मीडिया को यूज करके हमें सारा का सारा क्या इसके हाल के बारे में पूछ सकते हैं। इसका मतलब हेल्थ भी जो है, इट आल्सो कम्स इन it also acts as in what? Emerging industry, or we can say the sunrise industry. Similarly, information technology अभी वर्ल्ड में अब ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसने वर्ल्ड को अब एनगल्फ किया है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज किए जाते हैं ताकि किसी डाटा को ट्रांसमिट किया जाए, रिट्राइव किया जाए, या मैनिपुलेट किया जाए, इवन की स्टोर ही क्यों ना किया जाए, वो सारे के सारे आ जाते हैं किसमें? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो या हेल्थ हो, ये सारे के सारे आ जाते हैं किसमें? इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में। सो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज को आप कैसे सीधे से डिफाइन कैसे करोगे कि इमर्जिंग इंडस्ट्री क्या हो गई या स्टैंडर्ड इंडस्ट्री क्या होगी? ये वो वाली इंडस्ट्रीज हो गई जिनका
जिनका बिजनेस किसी न्यू आइडिया के इर्द गिर्द घूमता फिरता हो, और वो इनके जो ख्यालात होंगे वो अभी किन में, डेवलपिंग स्टेजेस में पढ़ते होंगे। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज वो वाली इंडस्ट्रीज हो गई जिनका कोई आइडिया, जिनकी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी घूमती फिरती होगी किसी नए आइडिया के इर्द गिर्द, और वो नया आइडिया जो है वो अभी इमेच्योर स्टेज में होगा, या हम कहेंगे किसी डेवलपिंग स्टेज में होगा, उनको हम बोलते हैं इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। सो इट जनरली includes a new idea that generally surrounds in and around newer ideas and still exists in what? And still exists in developing stages. So emerging industries whose line of business is around a newer idea, and are still in developing stages. It involves the industries like hospitality, information technology, एजुकेशन। एजुकेशन को मैंने आपको अभी कैसे बोला कि एजुकेशन को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं एज एन इमर्जिंग इंडस्ट्री। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका सब्जेक्ट जो ज्योग्राफी, अभी मैं आपको ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, लेकिन अभी ये डेवलपिंग स्टेज, अभी ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में इतना नहीं हुआ है, इतना डेवलप नहीं हुआ है। जब ये ग्लोबली सारे की सारी कंट्रीज में हो जाएगा तब हम कहेंगे इसको, तब हम नहीं ट्रीट कर सकते हैं एज एन इमर्जिंग इंडस्ट्री। या हेल्थ कंसल्टेंसी, अभी सारे के सारे वर्ल्ड में ग्लोबली हम सारी के सारी कम्युनिटीज को हम ऑनलाइन नहीं ला सकते हैं कि ताकि इनका हेल्थ चेकअप हो जाए। तो इसका मतलब हेल्थ पड़ता है किसमें, इमर्जिंग इंडस्ट्री में, यानी जिनका आइडिया अभी घूमता फिरता एक नए आइडिया के इर्द गिर्द जो अभी डेवलपिंग स्टेज में ही पड़ता है। सो ये होगी मेजर इंडस्ट्री। सो मेजर इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड आर आयरन स्टील इंडस्ट्री, सेकंड वन इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, and third one is information technology. This information technology comes in the category of emerging industries, or we can say the sunrise industry, while as iron and steel industry and textile industry, they do come under the older type of industries. So let us now move towards iron and steel industry. Iron and steel industry as an industrial system. We have to treat iron and steel industry as an industrial system. This iron and steel industry, it acts as a feeder industry. First point, acts as feeder. Why feeder? Because all the other industries, whether cotton textile industry, whether any industry, their machinery that generally uses the equipment, that generally uses the finished raw material, So this iron and steel industry acts as the feeder industry for other industries. Acts as the feeder industry for other industries. We have to treat this. हमने इसको कैसे पढ़ना है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम कैसे ट्रीट करेंगे एज एन इंडस्ट्रियल सिस्टम। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बोला है कि इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या हो गया। हम इंडस्ट्रियल सिस्टम उसको कहते हैं जिसमें एक खासा इनपुट हो, एक प्रोसेसिंग स्टेप्स हो और आखिर में एक आउटपुट निकालता हो। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री को भी हमने ट्रीट करना है एज एन इंडस्ट्रियल सिस्टम। अगर हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे तो पहले हम इस आयरन और स्टील इंडस्ट्री में क्या होगा, इनपुट क्या बनेगा। इनपुट में आपको पता ही है कि इनपुट में पहले इसका आता है आयरन ओर, जो कि है Fe2O3, जिसको हम कभी कभार बोलते हैं हाइमेटाइड भी। खाली यही वाली आयरन ओर इसके लिए एज एन इनपुट काम नहीं करेगी, बल्कि
मैग्नेटाइट भी कर सकती है। चाहे मैग्नेटाइट हो चाहे हाइमीटाइट हो, ये दोनों के दोनों एक्ट करते हैं आयरन ओर्स। ये दोनों के दोनों एक्ट करते हैं आयरन ओर्स किसके लिए? आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए। लेकिन बनता क्या है आखिरकार? उसका इनपुट। खाली इतना ही नहीं इनपुट में आएगा, बल्कि लेबर भी इसमें इनपुट का काम करेगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी इसके लिए इनपुट का काम करेगा। यानी कितना पैसा हमने इस इंडस्ट्री के अंदर लगाया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आयरन और या मैग्नेटाइट हासिल करें। खाली इतना ही नहीं बल्कि कोल भी एक्ट करता है इसके लिए एज एन इनपुट। इतना ही नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट, या हम कभी कभार बोलते हैं लाइमस्टोन भी, या डोलोमाइट। सो आयरन और स्टील इंडस्ट्री को एज एन इंडस्ट्रियल सिस्टम ट्रीट करने के बाद हमें क्या पता चलता है कि इसके लिए इनपुट काम करेगा आयरन और, चाहे हाइमीटाइट हो या चाहे मैग्नेटाइट हो। और सेकंड कौन सा काम करेगा? कितना सरमाया इसमें लगा है, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है। और तीसरी चीज, इसमें कोल लाना है, कोयला। दिस कोल कम्स एज द हाई ग्रेड कोल एज कोक, जो मैं आपको आखिर में बताऊंगा ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है। और लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। और तीसरी वाली चीज वो आता है डोलोमाइट। ये डोलोमाइट भी एक मिनरल है जो काम करता है किसमें? इस आयरन और स्टील इंडस्ट्री में। सेकंड, प्रोसेसिंग में क्या होता है? रिमेंबर दिस थिंग दैट वी आर ट्रीटिंग द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एज एन इंडस्ट्रियल सिस्टम। इन एन इंडस्ट्रियल सिस्टम फर्स्ट पॉइंट इज इनपुट, सेकंड वन इज प्रोसेसिंग और प्रोसेसेस। इसमें क्या होती है? दो प्रोसेसेस होती है आयरन और स्टील। आयरन को तब्दील करने में दो प्रोसेस लगती है। फर्स्ट वन इज, एक है इसमें स्मेल्टिंग। When the institution were open, we had a lecture on smelting. What do you mean by the term smelting? Smelting असल में वो प्रोसेस होती है जिसके जरिए से हम मेटल ऑक्साइड में से निकालते हैं उसके मेटल को हीट करके। स्मेल्टिंग वो वाली प्रोसेस होती है जिसमें से हम मेटल ऑक्साइड में से निकालते हैं मेटल को। कब? हीट करने के बाद। लेकिन हीट कितनी देते हैं? बियॉन्ड इट इज मेल्टिंग पॉइंट, यानी जब तक ये मेल्ट ना होना शुरू हो जाए तब तक हम हीट देते रहते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, मिसाल के तौर पर अगर मैं कॉपर ऑक्साइड लूंगा, मैंने इससे पहले आपको ओरस पढ़ा है, ऑक्साइड ओरस, सल्फाइड ओरस मैंने पढ़ा है। ये जो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है ये एक्ट करेगा कॉपर के लिए और, लेकिन किस किस्म की और? ये ऑक्साइड और है क्योंकि इसमें प्रेजेंट है एलिमेंट ऑक्सीजन। तो हमने इस ऑक्सीजन को अलहदा करना है, सेपरेट करना है किसे? कॉपर से, ताकि हमारे लिए अच्छा कॉपर, एलिमेंटल कॉपर क्या हासिल हो जाए। तो हम स्मेल्टिंग में क्या करते हैं? किसी मेटेलिक ऑक्साइड को लेते हैं जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, इसको हम ट्रीट करते हैं कार्बन के साथ। किसके साथ करते हैं ट्रीट? कार्बन के साथ। हीट करने के बाद क्या होता है? ये कॉपर ऑक्साइड जो है ये अलहदा हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और साथ ही निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस बैलेंस को इक्वेशन करने की जरूरत अगर होगी तो कर लो। इस साइड से 2 ट्वाइस, इस साइड से भी ट्वाइस। तो यहां से आ गए 2 कॉपर एलिमेंट्स, यहां से भी आ गए 2 कॉपर एलिमेंट्स। लेकिन यहां से भी आ गए ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स, यहां से भी आ गए ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स। यहाँ पर कार्बन का 1 एलिमेंट और यहाँ पर कार्बन का 1 एलिमेंट। बैलेंस करना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर मेथड सीखना है कि स्मेल्टिंग क्या होगी। स्मेल्टिंग दोबारा मैं बोलने जा रहा हूँ ताकि आप नोट मत कोई करता है तो वो नोट करे लेक्चर को सुनने के बाद। स्मेल्टिंग वो वाली प्रोसेस होती है जिसमें हम मेटल ऑक्साइड को लेते हैं, उसको ट्रीट करवाते हैं कार्बन के साथ, यही कार्बन, और वहां से हासिल हो जाता है मेटल। क्योंकि यहां पर हमने कॉपर ऑक्साइड लिया है तो कॉपर हासिल होगा और यहां से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड एज गैस। अगर आप आयरन ओर की तरफ देखोगे वो भी एक्ट करती है एज एन ऑक्साइड ओर। आयरन ओर को स्मेल्टिंग करने के बाद, जैसे कि मैं ले रहा हूं यहां पर, अब मैं आयरन की एग्जांपल लूंगा। आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 हाइमीटाइट, इसको जब हम ट्रीट करते हैं कार्बन के साथ, इस कार्बन का सोर्स मैं बताऊंगा ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। इस कार्बन का सोर्स कौन करेगा?
वो जनरली करेगा, वो कार्बन आता है कोक से, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है, ये हायर टाइप हाई ग्रेड कोल होता है। आखिरकार बनता है कौन? ये वाला हाई ग्रेड कोल जिसको हम बोलते हैं कोक। इस कोक के साथ ट्रीट करने के बाद किसको? हामीटाइट को। अब ये तो जाहिर सी बात है कि स्मेल्टिंग के बाद क्या होगा? ऑक्सीजन सेपरेट होगा और आयरन भी सेपरेट होगा। नाउ दिस आयरन एक्ट एज एन एलिमेंटल आयरन। ये ऐसे आएगा Fe प्लस CO2। अब अगर इक्वेशन को बैलेंस किया जाए तो यहां से हम ट्वाइस करेंगे, आ गए यहां से आ गए 2 आयरन। अब यहां से ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल, चलो यहां से भी ट्वाइस करेंगे, तो यहां से हमने करना है फिर थ्राइस, तो यहां से भी हमने करना है थ्राइस। ये होगी बैलेंस इक्वेशन। लेकिन ये स्मेल्टिंग होगी। अब स्मेल्टिंग का मतलब क्या होगा? स्मेल्टिंग वो वाली प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी मेटल का ऑक्साइड लेते हैं और उसको हम ट्रीट करते हैं कोक के साथ, कार्बन के साथ, ताकि वहां से हमें हासिल हो जाए कौन? एलिमेंट, उसका एलिमेंट, मेटल का एलिमेंट, मेटल एज एन प्योर मेटल या एलिमेंट एज एन प्योर एलिमेंट। तो आयरन ऑक्साइड को ट्रीट करने के बाद किसी कार्बन के साथ वहां से निकलता है आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवापोरेट हो जाता है। अब अगर आप नजर डालोगे यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस की तरफ, ब्लास्ट फर्नेस में मैंने क्या लिया? एक लिया है मैंने हाइमेटाइट, फोकस हाइमेटाइट। एक लिया है मैंने हाइमेटाइट जो आयरन और सिटी इंडस्ट्री के लिए काम करेगा इनपुट। दूसरा मैंने लिया है कोक, कोक से मिलेगा कार्बन, ताकि ये कार्बन रिड्यूस करे इस आयरन और को किसमें? एलिमेंटल आयरन में। ये आया यहां पर एलिमेंटल आयरन, एलिमेंटल आयरन। और साथ ही में मैंने लिया है लाइमस्टोन। मैं बताऊंगा आखिर में लाइमस्टोन का काम क्या होता है। जबकि लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इस ओर के साथ कभी कभार इंप्योरिटी होती है, इस ओर के साथ कभी कभार इंप्योरिटी होती है। जब ये सारा का सारा एक्ट करता है, चाहे हाइमेटाइट हो, चाहे कोक हो, चाहे लाइमस्टोन हो, इन तीनों का हम बोलते हैं फ्लक्स बनता है। इस फ्लक्स को हम एज एन इनपुट डालते हैं किसमें? इस ब्लास्ट फर्नेस में। इस ब्लास्ट फर्नेस में हम डालते हैं इनपुट किनको? एक हम डालते हैं हाइमेटाइट को, दूसरा हम डालते हैं कोक को, तीसरा हम डालते हैं लाइमस्टोन को। ये सारा का सारा फ्लक्स बनता है। इस फ्लक्स का अलग अलग काम होता है, वो मैं आगे बोलूंगा आपको। क्या ब्लास्ट फर्नेस क्या होती है? पहले ब्लास्ट फर्नेस ये टॉल ओवन है, कुछ जैसे घर में बनता है ना ओवन, लेकिन ये बड़े पैमाने पे ओवन है, किलिन। ये वो वाली ओवन है जिसमें बाहर से, जिसकी लाइनिंग बाहर से बनी हुई है, जिनकी लाइनिंग होती है रॉक, जिनकी लाइनिंग होती है ब्रिक से। लेकिन ये ब्रिक्स क्या होती है? बिल्कुल हार्ड, क्योंकि अंदर इसके लिए जलावन भरा पड़, ये जलावन से भरा होता है। कौन? ये किलिन, ये ब्लास्ट फर्नेस। इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आप देखोगे टेम्परेचर वेरी हो जाता है स्टेप बाय स्टेप। यानी यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे बॉटम के नीचे सबसे हाई टेम्परेचर, उसके बाद सबसे कम, टॉप पे सबसे कम टेम्परेचर। इस ब्लास्ट फर्नेस में हम लेते हैं इसी आयरन ऑक्साइड को, कोक को और लाइमस्टोन को। जबकि आपको स्मेल्टिंग की डेफिनेशन पता ही है कि हीट करना किसी और को कार्बन के साथ, ताकि वहां से क्या निकले? एलिमेंटल आयरन। हीट कहां से प्रोवाइड होती है? इस ब्लास्ट फर्नेस से। हीट से क्या होता है? ये एलिमेंटल आयरन रिड्यूस होता है किसके जरिए से? कार्बन के जरिए से, और वहां से निकलता है एलिमेंटल आयरन। अब इस एलिमेंटल आयरन में भी कभी कभार इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का काम क्या होता है? जो हम फ्लक्स में लेते हैं एज ए लाइमस्टोन, ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है या सेपरेट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, और साथ में छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड का काम होता है, ये मिलता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ। ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक्चुअली गैंग का काम करता है। गैंग का काम नहीं करता, बल्कि गैंग होती है एक्चुअली इंप्योरिटी किसमें? इस आयरन ओर में। खाली आयरन ओर में ही नहीं होती है, कभी कभार होती है ऑक्साइड ओर्स में, कभी कभार होती है जिंक ओर्स में भी, कभी कभार होती है कॉपर ओर्स में भी। यानी गैंग जो एज एन इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है किसमें? आयरन ओर में, उसको रिमूव करवाने में मदद करता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमने डाला हुआ है किसमें? ब्लास्ट फर्नेस में। यही पहले कैल्शियम कार्बोनेट खुद हो जाता है किसमें? डिसइंटीग्रेट कैल्शियम ऑक्साइड में। बाद में कैल्शियम ऑक्साइड किसके ऊपर एक्ट करता है? इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड में। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या होता है? गैंग होता है, गैंग इंप्योरिटी। गैंग का मतलब होगा इंप्योरिटी।
इसके बाद ये बनाता है कैल्शियम सिलिकेट ट्राइऑक्साइड। ये जो कैल्शियम सिलिकेट ट्राइऑक्साइड है ये एक्ट करता है स्लैग। इस ब्लास्ट फर्नेस में अगर ये वाला पोर्शन देखोगे जो मैंने ग्रीन से भरा हुआ है, ग्रीन कलर से भरा हुआ है, ये यहां पर एक्ट करता है स्लैग। स्लैग भी इंप्योरिटी होती है, लेकिन केमिकली क्या होती है स्लैग? ये होती है कैल्शियम सिलिकेट ट्राइऑक्साइड। तो ये कहां से आती है? जो गैंग प्रेजेंट होती है कहां, किसमें? मिनरल ओर में। उसको जब ये किसके साथ मिल जाती है? कैल्शियम ऑक्साइड में, वो निकल जाती है क्या? स्लैग। चाहे स्लैग हो चाहे इम्प्योरिटी हो, ये दोनों की दोनों होती है क्या? चाहे गैंग हो चाहे स्लैग हो, ये दोनों की दोनों होती है इम्प्योरिटीज किसमें प्रेजेंट? जो आयरन ओर में प्रेजेंट होती है। चाहे आयरन ओर हो, चाहे आयरन ओर में से हाइमेटाइट हो, मैग्नेटाइट हो, कोल हो, लाइमस्टोन हो या डोलोमाइट हो, ये सारे के सारी चीजें दिस आर विल एक्ट एज द इनपुट फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सेकंड वन, प्रोसेसिंग में क्या होगी? स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग ही खाली नहीं होगी, बल्कि स्मेल्टिंग के साथ साथ वहां पर क्या होगी? दूसरी वाली प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में क्या परफॉर्म हो जाती है? रिफाइनिंग में हम परफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में हम आहिस्ता आहिस्ता ऑब्टेन करते हैं कौन? प्योर एलिमेंट। किसका? आयरन का। आयरन की हम प्योर फॉर्म ऑब्टेन करते हैं। उसमें हम आगे आपने पढ़ना है, साइंस में ये टॉपिक, साइंस सब्जेक्ट में टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें आप ये सीखोगे। लेकिन मैंने यहाँ पर अभी डिफाइन करना है कि प्रोसेसिंग में कौन सा सेटअप आएगा। पहला वाला सेटअप आएगा स्मेल्टिंग, दूसरा वाला सेटअप आएगा रिफाइनिंग। रिफाइनिंग किसके जरिए से परफॉर्म होगी? बाय इलेक्ट्रोलिसिस। स्मेल्टिंग में क्या होता है? ऑक्साइड, एक मिनरल ऑक्साइड को, चाहे हाइमेटाइट हो चाहे मैग्नेटाइट, उसको रिड्यूस किया जाता है कार्बन के जरिए से। किसमें? एलिमेंटल आयरन में या एलिमेंटल मेटल में। स्मेल्टिंग वो वाली प्रोसेस होती है जिनमें हम मेटल ऑक्साइड को हीट करवाते हैं बियॉन्ड देयर मेल्टिंग टेम्परेचर सो दैट देयर एलिमेंटल फॉर्म कैन बी ऑब्टेन। और आखिर में आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आपको पता है कि आउटपुट में क्या मिलता है। एक तो प्योर फॉर्म ऑफ आयरन मिलेगा, प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, और प्लस मनी। तो ये आउटपुट आएगा। इस तरीके से हमने आयरन और स्टील इंडस्ट्री को ट्रीट किया एज एन इंडस्ट्रियल सिस्टम। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक यू क्लियर, हाउ टू ट्रीट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एज एन इंडस्ट्रियल सिस्टम। इसमें हमने दोबारा मैं रिवाइज करूंगा यहाँ पर। इसमें हम फ्लक्स लेते हैं। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? इसमें हम आयरन ओर लेते हैं, चाहे मैग्नेटाइट हो चाहे हाइमेटाइट हो, और दूसरा हम क्या लेते हैं? कोक लेते हैं, और साथ ही में हम लेते हैं लाइमस्टोन। ये सारा का सारा बनता है फ्लक्स। ये सारी की सारी चीजें किसमें लेते हैं? हम लेते हैं सारी की सारी चीजें ब्लास्ट फर्नेस में। ये ब्लास्ट फर्नेस क्या होती है? कुछ नहीं, एक टाल सी बिल्डिंग होती है। टाल सी बिल्डिंग में एक टाल सी किलिन होती है जिसको हम बनाते हैं ब्रिक्स से। लेकिन इन ब्रिक्स के अंदर क्या होता है? हाई टेम्परेचर। और यहाँ पर दूसरी टर्म आ जाएगी स्लैग। स्लैग क्या होती है? एक्चुअली ये स्लैग होती है इम्प्योरिटी जो फ्लोट करती है प्योर आयरन के ऊपर। ये जो डॉट है जहां पर, ये दिखाते हैं प्योर आयरन। इस प्योर आयरन को हम हासिल करते हैं यहां से। तो गैसेस कहां से, वेस्ट गैसेस कहां से निकलती है? यहां से। यहाँ पर लिखा है मैंने, वेस्ट गैस वो निकलते हैं यहां से। स्लैग आ जाता है इसके ऊपर। इस स्लैग का भी काम है, ये खाली वेस्ट एक्ट नहीं करता है, बल्कि ये स्लैग को यूज किया जाता है रोड सरफेसिंग में। स्लैग इज यूज्ड इन रोड सरफेसिंग। ये वेस्ट का काम नहीं करेगा, लेकिन ये जो प्योर आयरन होता है ये ट्रिकल डाउन होता है आहिस्ता 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 at the bottom of this blast furnace, and when it settles down at the bottom of the blast furnace, we then it got it what easily, फिर हम इसको आसानी से हासिल करते हैं। फिर इस आयरन के भी दो फार्म्स आ जाते हैं। ये प्योर इतना नहीं होता है कि इसको हम यूज करें डायरेक्टली। जो आयरन, जिस आयरन को हम यूज करते हैं डायरेक्टली आफ्टर ऑब्टेनिंग इट फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस, उसको हम बोलते हैं
pig iron. So iron is of two types, pig iron. Second one is wrought iron. आयरन दो किस्मों का आता है आखिर में, एट द एंड। और ये जो ब्लास्ट फर्नेस में जो प्रोसेसिंग चलती है ना, ये बिल्कुल कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये 1 मंथ 2 मंथ्स के लिए चलती है, 3 मंथ्स के लिए चलती है। आखिरकार हमें वहां से हासिल हो जाता है एक आउटपुट जो कि आयरन वहां पर है। लेकिन ये आयरन भी दो किस्मों का होता है, जो ब्लास्ट फर्नेस से ही यूज किया जाता है। जो आयरन ब्लास्ट फर्नेस से निकलने के बाद ही यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं पिग आयरन। और इस पिग आयरन की खासियत क्या है? ये इम्प्योर फॉर्म होता है। इसमें इम्प्योरिटीज ऐड होती है सिलिकॉन की, फास्फोरस की, या कभी कभार होती है इसमें ऐड सिलिकॉन, फास्फोरस और कार्बन, इसमें इम्प्योरिटी ऐड होती है। अब इसकी खासियत क्या है? खासियत क्या है, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? पिग आयरन के डिसएडवांटेजेस क्या है? ये प्योर फॉर्म ऑफ आयरन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ इम्प्योरिटीज ऐड होती है सिलिकॉन, फास्फोरस एंड कार्बन स्टील। इससे क्या बनता है? ये बनता है लेस मेलेबल, लेस। इन इम्प्योरिटीज की वजह से कौन कौन सी? सिलिकॉन, फास्फोरस और कार्बन की वजह से ये जो पिग आयरन होता है ये बनता है लेस मेलेबल, और साथ में ही बनता है लेस डक्टाइल। You are going to learn these terms, malleability, ductility in your science. So let me here give a minute hint. Malleable का मतलब होगा जिसको हम ड्रा कर सकते हैं थिन शीट्स में, उसको हम बोलते हैं malleable। तो इस पिग आयरन की malleability उतनी नहीं होती जितनी की किसकी होती है? रॉड आयरन की। तो ये वाला प्योर फॉर्म, ये वाली इम्प्योर फॉर्म, ये वाला प्योर फॉर्म। और लेस डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब हो गया ये डक्टाइल या डक्टिलिटी वो वाली प्रॉपर्टी होती है जिसके जरिए से हम आयरन को, जिसके जरिए से हम किसी मेटल को थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। सो डक्टिलिटी होती है इसकी कम, किसकी? पिग आयरन की। और मेलेबिलिटी भी होती है कम, किसकी? पिग आयरन की। किसकी वजह से? क्योंकि इसमें ऐड होती है इम्प्योरिटीज लाइक सिलिकॉन, फास्फोरस एंड कार्बन। लेकिन रॉड आयरन की क्या होती है? इसको हम बाद में दोबारा से ट्रीट करते हैं किसके साथ? अपनी ओर के साथ, ताकि अपनी सारी की सारी इम्प्योरिटीज को छोड़ दे। वहां से निकलता है रॉड आयरन। ये रॉड आयरन जो है ये बनता है हमारा कॉमर्शियल आयरन, जिसको हम कॉमर्शियल पर्पस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। तो आखिरकार ये जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, हमने इसको ट्रीट किया एज एन इंडस्ट्रियल सिस्टम। और पहले हमने टॉपिक लिया किसके ऊपर? मेजर इंडस्ट्रीज के ऊपर। व्हाट आर मेजर इंडस्ट्रीज? ये वो वाली इंडस्ट्रीज हो गई जिन्होंने वर्ल्ड के या ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा एड अप किया है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। उसमें आती है एक आयरन और स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और आती है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आयरन और स्टील इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाली ये दोनों की दोनों इंडस्ट्री जो है ये ओल्डर इंडस्ट्रीज है। लेकिन इंफॉर्मेशन वाली टेक्नोलॉजी जो है ये अभी इनको ये पड़ती है सनराइज इंडस्ट्रीज में भी, या हम इनको बोलते हैं इमर्जिंग इंडस्ट्रीज भी। तो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज क्या हो गई? इमर्जिंग इंडस्ट्रीज वो वाली इंडस्ट्रीज हो गई जिनका इकोनॉमिक थॉट अभी घूमता फिरता हो, या जिनका इकोनॉमिक थॉट अभी डेवलपिंग स्टेज में ही पड़ता है, उनको हम बोलते हैं इमर्जिंग इंडस्ट्री। जैसे कि मैंने उसमें एग्जांपल दी आपको हेल्थ की, या अभी आपकी एजुकेशन की। यानी अभी वर्ल्ड में इतना पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक ग्लोबल कम्युनिटी के पास एजुकेशन पहुंचाए, तालीम पहुंचाए। किसके जरिए से? बाय द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मॉडर्न एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। इट इज नॉट पॉसिबल। सो ये जो एजुकेशन है ये भी पढ़ती है, या नॉलेज भी पढ़ती है किसमें? इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में। या सीधे उसमें दूसरी एग्जांपल है, मैंने बोला कि वेलनेस। आजकल हेल्थ के बारे में, हेल्थ के ऊपर आ जाते हैं एडवर्टाइजर्स, आ जाते हैं टीवीज पे, आ जाते हैं आपके फोन्स पे, आ जाते हैं। उसमें क्या होता है? जिसमें कि दिखाया जाता है कि उसमें प्रमोट किया जाता है कि आपकी मेंटल और फिजिकल वेलबींग किसी जरिए से, भाई आपने योगा करना है ऐसे, आपने एक्सरसाइज करनी है ऐसे, आपने डाइट लेना है ऐसे। यानी आपकी हेल्थ के बारे में ख्याल किया जाता है, लेकिन ऑनलाइन। यानी आपकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो जाती है किनके ऊपर? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर, आपके मोबाइल फोन्स के ऊपर, कि भाई आप अपनी सेहत का ख्याल, यू कैन क्या मे बिकम अवेयर अबाउट योर हेल्थ बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग रूल्स, बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग प्रिकॉशंस।
ये सारे का सारा अभी क्या डेवलपिंग स्टेज में ही है, तो हम इनको कहेंगे इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। इसका मतलब हेल्थ भी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी, हॉस्पिटैलिटी भी और नॉलेज, ये सारी की सारी आ जाती किसमें, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में। फिर इसमें मैंने दूसरा टॉपिक पढ़ा आयरन सिटी इंडस्ट्री। इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं एज एन इंडस्ट्रियल सिस्टम। मैंने पहले वाले लेक्चर में बोला है कि आपको कि इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या हो गया, वो वाला सिस्टम जिसमें इनपुट भी आता हो, प्रोसेसिंग भी आती हो और आउटपुट भी आता हो। इनपुट में क्या पड़ता है, इनपुट में कोई रॉ मटेरियल आएगा, लेकिन वो वेल फर्निश्ड फॉर्म में नहीं आएगा। जैसे कि आयरन के लिए रॉ मटेरियल एक्ट करेगा आयरन और मैग्नेटाइट या कोल, लाइमस्टोन, ये सारे के सारे इनपुट्स बनेंगे। और इसकी प्रोसेसिंग जब होगी, जब ये थोड़ा सा तब्दील होने लगेगा, किसके जरिए से, स्मेल्टिंग के जरिए से और रिफाइनिंग के जरिए से, ये दोनों की दोनों प्रोसेस आते किसमें, प्रोसेस में। और आखिरकार आउटपुट क्या निकलेगा, प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, और आखिरकार और साथ में पैसा भी, उससे जो पैसा हासिल होगा वो भी क्या निकलेगा, आउटपुट। ये जो आखिरकार आयरन, ये सारी की सारी प्रोसेसिंग जो होती है, इस इनपुट को, प्रोसेसिंग स्टेप्स को और आउटपुट जो निकलता है, ये सारे के सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं एक ब्लास्ट फर्नेस में, जिसमें कि आपकी बुक के ऊपर भी यहाँ पर अगर देखोगे आप, तो कुछ टर्म्स दी गई थी, वरना आपको समझ में नहीं आने वाली थी। स्लैग दी गई थी, मोल्टन आयरन दिया गया था, ब्लास्ट फर्नेस क्या हो गई, कैसी इसकी कंस्ट्रक्शन है, तो कहाँ कहाँ पर पड़ता है। Hope you may have understood these two topics, milk industries as well as iron and steel industry. Thanks.